म्यूरामिक एसिड. So these are the two type of sugar जो कि बैक्टीरिया की सेल वॉल में प्रेजेंट होती है. So first of all we need to remember that the cell wall is made up of peptidoglycan. If we split the peptidoglycan तो हमें दो चीज पता लगेंगी कि बेसिकली पेप्टाइडोग्लाइकन होता क्या है. पेप्टाइडोग्लाइकन अमाइनो एसिड और शुगर से प्रेजेंट बना होता है. 4 टाइप के अमाइनो एसिड और 2 टाइप की शुगर. 4 टाइप के अमाइनो एसिड 2 टाइप के बैक्टीरिया में अलग अलग दिखते हैं हमें. So in gram positive you can see these 4 and in gram negative you can see these 4. And sugar are common. Sugar is common in all type of bacteria. So whether it is gram positive या gram negative कोई भी बैक्टीरिया हो, ये दोनों सेल वॉल, ये दोनों शुगर उसकी सेल वॉल में मिलेंगी. So is this clear till here? Is this clear? Just say yes or no. I don't want you to write anything else. Just say yes or no. Am I audible to everyone? Guys, just say okay. Good. So quickly write it down. What have you not understood? What have you not understood? There are 4 type of amino acid and there are 2 type of sugar in the cell wall of bacteria, and 4 type of bacteria. I have 4 type of amino acid. I have written the name. These are the 4 type of amino acid present in gram positive, and these type of 4 type of amino acid present in gram negative. Okay, or these are the sugar which is common in all type of bacteria, right? So guys who were absent in last class, please note it down. Quickly note it down. In the next slide I'm going to show you how these amino acid and sugar are arranged. कैसे ये arrange होते हैं. ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव इस टॉपिक के बाद हम पढ़ेंगे. So don't worry, हम पढ़ेंगे इसके बाद. इसके बाद हम यही टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव. Priyanshu, what have you not understood? What have you not understood? Tell me, which part did you not get? Cell wall of bacteria is composed of peptidoglycan. We are talking about bacteria. हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, अभी बैक्टीरिया चल रहे हैं. So now here I will show you the arrangement of sugar and the amino acid. Arrangement of sugar and amino acid. No, full form is not compulsory, but if you can remember then it is good. अगर याद कर सकते हो तो कर लो. So here I'm telling you how these sugar and amino acid are arranged. So these are sugar. This is sugar. This is sugar, and this is sugar. So how sugar are arranged? You will see NAC, NAM, NAC, NAM, NAC. So one unit is NAC and one unit is NAM. So they are alternate, right? They are alternate. NAC, NAM, NAM, and NAC. This is how sugar are arranged vertically. Sugar are arranged vertically, and in between the sugar, amino acid are the one which link the sugar. So these are the amino acid. So we have studied 4 type of amino acids. So I'm going to make 4 circles. 1, 2, 3, 4. As we have only 4 amino acid.
So basically how the sugar and amino acid are arranged in how the sugar and amino acid are arranged. So these are amino acid. These are amino acids. So this is, so just imagine the structure of cell wall. जो शुगर है वो वर्टिकली अरेंज्ड है और उसके बीच में हॉरिजॉन्टली अरेंज है अमाइनो एसिड. सो इस तरीके से बैक्टीरिया की सेल वॉल बनती है, राइट? इस तरीके से बैक्टीरिया की जो है, it is the nature decides all the thing कि bacteria should have cell wall like this. Okay, so these are the sugar in which sugar units are alternate, NAC, NAM, NAC, NAM, 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 NAM. ऐसे alternate way में sugar की units arrange होती हैं vertically and horizontally उनके बीच में link होता है amino acid का. ऐसे बनता है cell wall. ठीक है. Number of sugar will be dependent on the thickness of cell wall. ठीक है. Sugar ऐसे, amino acid बीच में उसको link करते हैं. तो हर शुगर को लिंक करने के लिए अमाइनो एसिड होते हैं. हमें कोई प्रोपोर्शन याद नहीं करना है, हमें कोई प्रोपोर्शन नहीं देखना है. यहाँ पे मैंने सिर्फ तुम्हें बताया है कि ये ऐसे अरेंज होता है. हमें इसकी डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि तुम्हारे इतना डिटेल में नहीं है. एंड दिस इज नॉट इवन इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम फॉर विच यू आर प्रिपेयरिंग, राइट? सो हमें फोकस करना है अपने एग्जाम पर कि व्हाट इज इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम एंड व्हाट इज नॉट. सो आई डोंट वांट यू टू बी डिस्ट्रैक्टेड. मैं नहीं चाहती कि तुम लोग अपने एम से डिस्ट्रैक्ट हो. ठीक है. तो इतना याद रखो कि प्रोकैरियोटिक की जो सेल वॉल होती है वो शुगर और अमाइनो एसिड से बनी होती है. दो टाइप की शुगर, NAC एंड NAM, राइट? जो ऑल्टरनेट वे में अरेंज होती है. NAC, NAM, NAC, और उनके बीच में लिंक करता है अमाइनो एसिड. उनके बीच में लिंक करता है अमाइनो एसिड. सो दिस इज हाउ cell wall is prepared. Cell wall is made in prokaryotic cell. अब एक एंटीबायोटिक है which is penicillin. एक एंटीबायोटिक है which is penicillin. This is antibiotic. Yes, peptidoglycan and murin are same. So penicillin is a antibiotic जो against bacteria है, बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करता है. I request you to not type anything in the chat box unless I told you to do so. जब मैं बोलूंगी कि डाउट पूछो तब आप बड़े आराम से कर सकते हैं. मैं ब्लॉक इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि आज इंटरनेट इशू चल रहा है बीच में. अगर तुम लोगों से कनेक्टिविटी छूट गई तो मुझे पता भी नहीं चलेगा, राइट? सो इसलिए मैं चैट को ब्लॉक नहीं कर रही हूँ. तो अगर तुम अच्छे से पढ़ना चाहते हो सो प्लीज चैट बॉक्स में तब तक ना लिखें जब तक मैं तुमसे ना बोलूँ कि अपने डाउट्स पूछो, राइट? एप्रोप्रिएट टाइम दूंगी तुमको डाउट्स पूछने का. सो एक एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन. उसकी फंक्शनिंग कभी कभी पूछ लेते हैं कि ये बैक्टीरिया को मारता कैसे. ठीक है. सो बेसिकली सपोज दिस इज अ बैक्टीरिया. ये डिवाइड करता है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये डिवाइड करता है डॉटर सेल्स में, राइट? दिस इज अ बैक्टीरिया जो जनरली बाइनरी फिशन करता है, जो डिवाइड करता है डॉटर सेल्स बनाने के लिए. ठीक है. अब डॉटर सेल में क्या होगा? नई सेल वॉल बनेगी, राइट? डॉटर सेल वॉल में नई सेल वॉल बनेगी. तो ये पेनिसिलिन क्या करता है? ये उस सेल वॉल को बनने नहीं देता. और हमें पता है कि सेल वॉल का फंक्शन क्या है. हमें याद रखना है सेल वॉल का फंक्शन है, सबसे पहला इट प्रोवाइड्स शेप देता है, अच्छी सी शेप देगा. दूसरा सपोर्ट देता है, हार्ड बनाता है,
सेल को, ताकि सेल किसी भी कंडीशन में फट ना जाए, ठीक है। सो इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी, इट प्रोवाइड्स सपोर्ट, इट मेक्स द सेल स्ट्रॉन्ग बनाता है सेल को। तो इट ऑल्सो प्रोवाइड्स रिजिडिटी, बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है, रिजिड हार्ड बनाता है। सो बेसिकली क्या कर रहा है, प्रिवेंट्स इट फ्रॉम बर्स्टिंग, ताकि फट ना जाए, इसलिए सेल वॉल प्रेजेंट होती है, राइट। सो पेनिसिलिन क्या करता है, इट इनहिबिट्स द क्रॉस लिंकिंग ऑफ शुगर एंड अमाइनो एसिड। शुगर और अमाइनो एसिड को लिंक ही नहीं होने देता, ठीक है। अगर उन्हें लिंक नहीं होने देगा गाइस, तो क्विकली टेल मी क्या होगा, अगर वो शुगर और अमाइनो एसिड को लिंक नहीं होने देगा तो क्या नहीं होगा, जल्दी, यस, अगर लिंक नहीं होने देगा सो सेल वॉल बनेगी ही नहीं, ठीक है। अगर लिंक नहीं होने देगा तो सेल वॉल बनेगी नहीं, अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, जो नया बैक्टीरिया होगा वो मर जाएगा, ठीक है। जो नया बैक्टीरिया होगा वो मर जाएगा, राइट। सो पेनिसिलिन शुगर और अमाइनो एसिड को लिंक नहीं होने देता, अल्टीमेटली सेल विल डाई, राइट, सेल विल डाई। No cell wall, so after this cell will die. Good. So penicillin is used against bacteria. It is commercially produced from a fungi. एक फंजाई से एक्सट्रैक्ट होता है जिसका नाम है पेनिसिलियम। ये एक फंजाई से एक्सट्रैक्ट होता है जिसका नाम होता है पेनिसिलियम, करेक्ट। सो हमने अभी तक पढ़ा है सेल वॉल में शुगर और अमाइनो एसिड होती है। सेल वॉल का काम होता है शेप प्रोवाइड करना, सेल वॉल का काम होता है स्ट्रॉन्ग बनाना ताकि वो बर्स्ट ना हो जाए। लेकिन अगर हम बैक्टीरिया पे पेनिसिलिन डालते हैं तो क्या होता है, पेनिसिलिन शुगर और अमाइनो एसिड को लिंक ही नहीं होने देगा। अगर वो लिंक नहीं होंगे तो सेल वॉल मर जाएगी। So basically penicillin can be effective against all the bacteria which have cell wall, okay, but certain bacteria they can always develop immunity, because bacteria, they are fast mutating, they can change themselves very faster, so they इन अ वेरी फास्ट स्पीड, बहुत ही जल्दी जल्दी अपने आप को चेंज करते हैं, इसलिए एंटीबायोटिक्स से क्या हो जाते हैं, रेजिस्टेंट हो जाते हैं। इसलिए हमारी दवाओं की क्या होती है, जो हमारी दवाएं हैं उनकी अभी जो कंपोजिशन है वो टाइम टू टाइम चेंज करते रहते हैं, क्योंकि एवरी बैक्टीरिया they can develop immunity against a certain kind of chemical. Okay, so penicillin is an antibiotic जो हमें एक फंगस से मिलती है और जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती है। So basically जब ये डिस्कवर हुई थी तो पेनिसिलिन ने कौन से बैक्टीरिया को मारा था, स्टेफाइलोकोकस एक बैक्टीरिया है, वो जो मैं बाद में पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना। So स्टेफाइलोकोकस एक बैक्टीरिया जिसके अगेंस्ट ये पेनिसिलिन क्या हुई थी, डिस्कवर हुई थी। So are we good here? Are we good here? So quickly note it down. Okay. Debanjan, you don't need to know about these because you are going to study about the discovery of penicillin in your class 12th, right? So guys, यहाँ पे हम start करेंगे
it can destroy, अच्छा सुनो, penicillin can destroy that bacteria which is not immune to that antibiotic. जो बैक्टीरिया उस एंटीबायोटिक के इम्यून नहीं है वो उसे डिस्ट्रॉय कर सकता है, ठीक है। लेकिन बार बार अगर हम पेनिसिलिन किसी बैक्टीरिया के अगेंस्ट यूज करेंगे तो ऑब्वियसली बैक्टीरिया जो है वो एक इम्यूनिटी डेवलप कर लेगा। तो पेनिसिलिन सबसे पहला एंटीबायोटिक था जो डिस्कवर हुआ था एक्सीडेंटली। टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, बच्चे बस तुम्हें इतना याद रखना है, पेनिसिलिन नई सेल्स में, नई बैक्टीरिया सेल्स में सेल वॉल नहीं बनने देगा, और सेल वॉल नहीं बनेगी तो सेल फट जाएगी, सेल मर जाएगी, ठीक है। इसलिए पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया को मारता है। टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, नो रॉन्ग चारू। Types of bacteria, there are two types of bacteria. Yes, Alexander Fleming. Gram positive and gram negative. So हम दो टाइप के बैक्टीरिया पढ़ने वाले हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। किस बेसिस पर? बेस्ड ऑन gram staining technique. Stop writing. Gram staining technique. Okay, so based on a gram staining technique, हम पढ़ने वाले हैं different type of bacteria, gram positive and gram negative. So basically, this technique was developed by Christian Gram. So Christian Gram, he developed this staining, and the stain he used, stain means color, एक ऐसा कलर जो हम ऐसी चीज को देखने के लिए यूज कर रहे हैं जो हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, जिसे हमें माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करना है। तो स्टेन इज लाइक अ कलर। सो स्टेन ही यूज्ड वाज crystal violet. Crystal violet, which is violet in color, crystal violet.